Good morning students. We are going to start exercise 20.3 related to area of parallelogram. We will find area of parallelogram in this exercise. Question first is find the area of parallelogram with base 8 cm and altitude 4.5 cm. Altitude means height. Area of parallelogram is base multiplied by height. It means base is 8 centimeter and altitude height means 4.5 centimeter. This area is 36 centimeter square. We will multiply 8 multiply 4.5 centimeter. And unit is area of unit is centimeter square. Square unit is the area of. Find the area in second question. Find the area in square meter of the parallelogram whose base and altitude are as under. Base is 15 dm. Altitude is 6.4 dm. We have base is 15 meter. We will convert in centimeter square. 15 multiplied by 10 is equal to 115 centimeter. This is convert to meter, 1.5 meter. Same as altitude is convert to meter, 0.6 meter. The area of the parallelogram base multiplied by height, 1.5 multiplied by 0.64 meter. Answer is 0.96 meter square. Same as question number second part is second. Base 1 meter 40 centimeter and altitude is 60 centimeter. Base 1 meter 40 centimeter. We will convert in meters, 1.4 meter, since 100 centimeter is equal to 1 meter. Altitude is equal to 60 centimeter. Convert in meter, 0.6 meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. So area of parallelogram is base multiplied by height and then multiply 1.4 and 0.6 meter. Answer is 0.84 meter square. Question number third is find the altitude of parallelogram whose area is 54 dm square and base is 12 dm. यहाँ पर आपको एरिया गिवन है और बेस दिया है, तो आपको निकालना है एल्टीट्यूड. इट मीन्स हाइट आपको यहाँ पर निकालनी है. तो आपको जो एरिया दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वी विल राइट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला. एरिया मल्टीप्लाई बाय बेस, इट मीन्स इज इक्वल टू एरिया. इट मीन्स बेस आपको गिवन है, हाइट निकालनी है, तो एरिया को डिवाइड करेंगे हम किससे, बेस से. देन बेस इज द गिवन पैरेललोग्राम डीएम 12, डीएम एल्टीट्यूड ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम, एरिया बाय बेस 54 बाय 12 is equal to 4.5 dm. Next question is the area of rhombus is 28 meter square. If its parameter is 28 मीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड. रोहम्बस में आपकी 4 साइड्स होती हैं. पैरामीटर आपको दिया है 28 मीटर, तो आपकी जो वन साइड है वो हो जाएगी कितनी, 7 मीटर स्क्वेयर, 7 मीटर, बिकॉज पैरामीटर डिवाइडेड बाय साइड, नंबर ऑफ साइड. Parameter is divided by number of sides. Number of sides, how many number of sides? 4 sides in a rhombus. Then we will divide 28 divided by 4. Then side is 7 meter. Now area of the rhombus 28 meter square. Side multiply by altitude is equal to 28 meter square. साइड आपकी 7 मीटर है, इट मीन्स बेस आपका 7 मीटर है. एल्टीट्यूड आपको निकालना है, एल्टीट्यूड को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 7 से, तो एल्टीट्यूड आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 मीटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम. DL is the height and perpendicular on AB and DM is the height and perpendicular on BC. 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है L पर और M पर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर. DL परपेंडिकुलर है AB पर और DM परपेंडिकुलर है BC पर. AB की जो वैल्यू दी है आपको वो 18 सेंटीमीटर दी है. BC की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे 12, यहाँ दी है आपको 18.
एंड DM इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। जो DM की वैल्यू है वो है 9.3 सेंटीमीटर। टेकिंग BC, जब हम BC बेस लेंगे देन हाइट होगी DM। BC बेस 12 मीटर है तो हाइट है आपकी 9.3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने निकाल दिया यहाँ पे 111.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जब आप उसको AB आप हाइट लोगे तब DL क्या होगी, AB बेस होगा तब DL क्या होगी, हाइट होगी। यहाँ पे दो बेस दे रखे हैं आपको और दो हाइट दे रखी है। जब BC बेस था तब DM क्या थी, यहाँ पे आपकी हाइट थी। जब AB बेस है तो DL यहाँ पे क्या है, हाइट है। तो एरिया तो दोनों का सेम होगा। अगर आप कोई भी बेस और कोई भी एल्टीट्यूड लोगे तो जो आपको पैरेललोग्राम दिया है उसका एरिया सेम होगा, चाहे आप AB बेस लेकर DL हाइट ले लो या आप BC बेस लेकर DM हाइट ले लो। तो हमने जो चीज़ गिवन थी उससे हमने एरिया निकाल लिया। तो जैसा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 बना था ना, वो ऐसा ही बन गया। अब आपके पास एरिया गिवन है और AB आपको गिवन है, तो DL निकालनी है, इट मीन्स एल्टीट्यूड निकालना है। तो 111.6 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 18 से, क्योंकि हमारे पास जो AB है वो क्या है, 18 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे फॉर्मूला राइट किया, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या है, DL है, जो आपके पास गिवन नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई DL इज इक्वल टू 101.6 सेंटीमीटर। देन DL इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा ये है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाली जो चीज़ है यहाँ साफ होगी। उसके बाद जस्ट वेट, उसके बाद यहाँ आएगा आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऐसे लिखा है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 18 ऐसे लिखा जाएगा, तब आंसर आएगा आपका यहाँ पे 6.2। जो ये सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो आपका जो फॉर्मूले में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यू हैव नो नीड टू राइट सेंटीमीटर स्क्वायर, यू कैन राइट दिस सिंपली 111.6 divided by 18 and then answer is 6.2 centimeter. Okay, next question is question number 6. The longer side of parallelogram इज़ 54 सेंटीमीटर। जो लॉन्गर साइड है वो आपकी 54 सेंटीमीटर दी है एंड कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज़ 16 सेंटीमीटर। इफ़ द एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टर साइड इज़ 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। वही बात है, जब आपको DC दिया है तो AE भी दिया है, जब आपको AD दिया है तो आपसे FC मांगा है, यही कह रहा है। जब यहाँ पे आपको DC दिया है, DC यहाँ पे कितनी दी, लॉन्गर साइड है AB और DC, तो DC पर परपेंडिकुलर कौन है, AE परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखिए DC पर परपेंडिकुलर कौन है, AE परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे DC आपको कितनी दी है, 54 सेंटीमीटर। और जब AE कितनी दी है आपको, AE दी है यहाँ पे 16, ठीक है। उसके बाद जब आपको यहाँ पर शॉर्टर साइड दी है, शॉर्टर साइड कौन है, BC और AD, तो AD की वैल्यू भी आपको यहाँ पे कितनी दी है, 24 दी है। उसके बाद देखिए 24 देके उसने क्या पूछा आपसे, FC क्या है, FC पूछ लिया आपसे, FC, ठीक है। AB, अब वही बात है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, इट मीन्स DC मल्टीप्लाई AE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपकी निकल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसके बाद आपको वी हैव 2 एल्टीट्यूड एंड 2 कोरस्पॉन्डिंग बेसिस, तो 1/2 ऑफ BC मल्टीप्लाई CF। 1/2 राइट डाउन करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको, ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सीधा करना है क्या, ये वाला स्टेप आप लोग करोगे। जब आपको निकालना है बेस मल्टीप्लाई हाइट, इट मीन्स 54 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई आएगी उसको डिवाइड करना है आपको किससे, 24 से, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा। यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई हाइट आंसर आएगा, उसको डिवाइड करना है किससे,
24 से, तो आपकी कौन सी साइड आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी हाइट। ये नहीं करना आपको, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, DL परपेंडिकुलर है AB पर एंड AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AD 13 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड AL निकालना है आपको। यहाँ पे देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, वहाँ पे जहाँ पे AB आपको कितना दिया है, AB आपको यहाँ पर 20 दिया है। कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड DL की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। यहाँ क्या दिया आपको, AD दे दिया। AD कितना दिया यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम भी आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ABC 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब हमें बेस गिवन है, कब, AB जब बेस गिवन है तो वी विल फाइंड AL divided by area divided by AB, it means 100 divided by 20, then altitude is 5। एल्टीट्यूड यहाँ से आपका पता चल गया। उसके बाद फिर से उसने आपको क्या दिया, AD दिया। AD दे के यहाँ पे जब 90 डिग्री बन जाएगा, जब यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो जो आपकी ट्रायंगल है ALD, तो कौन सी ट्रायंगल बन गई आपकी, वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस यूज किया किस पे, ALD पे। ALD में AD हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। AL क्या है, बेस है। DL क्या है, हमारी हाइट है। तो हमने वहाँ से AD हमारे पास गिवन था, कितना गिवन था AD की वैल्यू दी थी यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस, क्योंकि हमारा जो ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर इनमें से हमें कोई भी एक चीज़ निकालनी है तो हम हाइपोटेन्यूज से माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मिला यहाँ पे AL इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसने AL ही आपसे फाइंड करने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, AB 35 सेंटीमीटर है, AD आपको 20 सेंटीमीटर, वही है। AB दिया है यहाँ पे, ये दिया है, ये दिया है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दिया है और आपसे फाइंड करने के लिए बोला है, LB फाइंड करने के लिए बोला है। तो आपको AB जब गिवन है कितना, 35 सेंटीमीटर, AB आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर। जब आपको AL पता चल जाएगा, जब आप AL निकाल दोगे तो 35 माइनस AL, देन वी विल फाइंड BL। तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर वाला क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड DL फाइंड करने के बाद AB हमारे पास है, डिवाइड करेंगे 560 को 35 से, तो आपके पास आ जाएगा DL आते ही आप 90 डिग्री राइट एंगल वाली ट्रायंगल बनाएंगे ALD से आप फाइंड करोगे AL को माइनस कर देना है किससे, AB से। AB में से आप लोग क्या कर दोगे, 35 दे रखा था ना, AB माइनस AL इज इक्वल टू BC आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 10 मीटर एंड 8 मीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। सेम एज क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं है। एडजेसेंट साइड दे रखी है, एक 10 मीटर है, एक एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी है, AD है, AD और DC हमारी एडजेसेंट साइड है। ठीक है, उसमें आपको AD भी दी है और DC दी है। ठीक है, तो उसके अंदर फिर आपको डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस है, इट मीन्स AE कितना दिया है यहाँ पे 4 मीटर दिया है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे। एरिया निकालने के बाद आपको AD गिवन है तो वहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, FC निकल जाएगी। ठीक है, AB आपको यहाँ पे दी है 10 मीटर, इट मीन्स ये 10 है तो ये भी 10 है, और ये दी है आपको यहाँ पे 4 मीटर, और तो ये भी, ये AE है, ये आपका 4 मीटर दिया है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट्स इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज
512 सेंटीमीटर। फाइंड द, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बेस और हाइट का ही कंपैरिजन करना है। लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे बेस क्या, x सेंटीमीटर, ट्वाइस इट्स हाइट, जो बेस है हाइट इसने x मान ली क्योंकि कहा था बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। जब तक आपको हाइट ही पता नहीं होगी तो आप बेस को डबल कैसे करोगे। तो लेट बी द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम x एंड बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 2x। देन given that the area of parallelogram 512 सेंटीमीटर, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, ध्यान रखना है 3x मत लिख देना, 2x का स्क्वायर बनेगा। 512 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 256 आएगा। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, तो आंसर आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ईच साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। आपको एक डायगोनल दिया है, एक बेस दिया है, अगर ए बी दे दी तो ए डी भी दे दी, ए डी दे दी तो डी सी और बी सी, इट मीन्स चारों साइड आपकी क्या है 15 सेंटीमीटर। एक डायगोनल आप कोई भी मान लो, ए सी मान लो या डी बी मान लो, ये 24 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया है। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगी आपकी पाइथागोरस यूज हो जाएगी। बाइसेक्ट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है आधा, हाफ पार्ट में डिवाइड करना, तो इट मीन्स 24 था तो यहाँ पे 12 ऊपर रह गया, 12 नीचे आ गया, यानी कि जो ए ओ है वो 12 हो गया आपका, और ए बी था वो कितना हो गया यहाँ पे 24। ए बी 15 सेंटीमीटर है, ए सी 24 था, तो ए ओ कितना रह गया यहाँ पे आपका 12 रह गया, ए बी 15 हो गया। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा दोगे, उसमें से आप क्या निकालोगे, ओ बी निकालोगे, क्योंकि ओ ए तो आपके पास हो ही गया, ए सी जब आपका 24 था तो ओ ए कितना रह गया यहाँ पे 12 रह गया। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस लगा के आपका जो एरिया ऑफ रोम्बस है ए बी सी डी वो आ जाएगा। बी डी की वैल्यू, ओ बी 9 सेंटीमीटर है तो बी डी यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस ए बी टी 1/2 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई बाय D2। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई